हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग रिकॉर्डेड वीडियोस थ्रू जा रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि आज हम भी एक रिकॉर्डेड वीडियो सेशन अपना बनाकर यूट्यूब चैनल पे डालें। होप आप लोग पसंद करोगे और आप लोगों की तारीफ हमें हासिल होगी। सो लेट्स गो विथ वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में से हमने ये क्वेश्चन लिया है। So come down on page number, check the page number 210। तो वहाँ पे क्वेश्चन है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 210। प्रेरणा एंड पीयूष आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। मतलब उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है उनका कैपिटल रेशियो है वही है। What is capital ratio? Let's check it out. That capital of Prerna is 50,000 and that of Piyush is 1,50,000. So if we consider the capital ratio, what is capital ratio? Let's check it out. Prerna and Piyush. Their capital ratio 50,000 is to 1,50,000. So that is 1:3. Right, 50,000 ones and 50,000 threes are. What it means? They share profit and loss 1/4 is to 3/4. Capital ratio, their balance sheet is given. Let's check it out. Capital account, Prerna, Piyush, 50,000, 1,50,000, total 2 lakh. Reserve fund will be distributed, that as we know, in their profit and loss sharing ratio. Creditors are there, outstanding expenses are there. Asset side, if we are checking out, we are seeing that building is there 90,000, furniture further given 17,500, machinery, stock, debtors, cash at bank, and accrued income, that means outstanding income. They admitted Poini as a new partner for 1/5 share of profit on 31/3/2016. Poini admitted as a new partner. Poini new partner admit हुई और उसको प्रॉफिट लॉस में शेयर कितना मिलने वाला, फ्यूचर प्रॉफिट में से उसको शेयर मिलेगा 1/5। The condition of admission are given here. Poini brought 62,500 as capital and 24,000 as her share of goodwill in cash. 60% of amount of goodwill is withdrawn by old partner. Poini 62,500 capital का लेके आ रही है, 24,000 24,000 a part of her share in goodwill, और जो goodwill का लेके आएगी उसका 60% old partners withdraw कर लेंगे। तो यहाँ से हमें स्टार्टिंग एंट्रीज जो लिखनी होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी 20,000, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली, दैट विल सी वेदर द वैल्यू ऑफ असेट हैज इंक्रीज डिक्रीज, दैट इफेक्ट विल बी गिवन। प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%, 2% DRD, that is discount reserve on debtor is to be made. Creditors are to be paid 30,000. Value of building is to be increased by 15%. And furniture is to be increased by 20%. Asset की value increase करनी है. Outstanding wages ₹460 is not recorded in the books. इसकी इफेक्ट देंगे. From the above information, prepare necessary accounts. क्या कहा गया? Prepare necessary accounts and a new balance sheet. अब necessary accounts में क्या क्या चीजें बनेगी हमें मालूम होना चाहिए. What things are to be drawn in necessary accounts? In admission, normally what we need? One is revaluation account. That is essential. Second, partners capital account, partners capital account, and third what we need is cash or bank account. A part of this, one more thing what is essential is to be drawn, that is balance sheet. तो ये 4 चीजें हमें बनानी है। मैंने ऑलरेडी कॉलम्स ड्राफ्ट करके रखा है, जिस तरह से हम अपने लाइव सेशन में देखते हैं कि आप लोगों को एक दिन एडवांस कह दिया जाता है कि क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये कॉलम्स ड्राफ्ट करके रखे हैं, दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो शुरुआत करें हम सॉल्व करना क्वेश्चन। स्टार्टिंग से देखेंगे हम पेज नंबर 210, क्वेश्चन नंबर 11। लेट गो विद द क्वेश्चन नाउ। क्या है फर्स्ट पॉइंट में? Poini brought 62,500 as capital.
अब 62,500 कैपिटल का अगर लेके आती है पॉइंट, व्हाट विल बी एंट्री? एंट्री विल बी दैट एज ऑल वी नो, already discussed many time in live session, cash bank account debit to point is capital account. So the effect will be cash bank account. cash bank account में हम डेबिट साइड पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, हम क्या करते हैं पहले कि जो चीज़ें बैलेंस शीट में इफेक्ट्स आने वाली है उसको पहले लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे कि इनकी इफेक्ट्स तो फिक्स ही रहती है, तो उसको हम लिख लें। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड सबसे पहले हम लिख लें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रेरणा और पीयूष का। तो वहाँ कैपिटल अकाउंट में पहुँच जाए, हम क्रेडिट साइड लिखें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स के नाम लिखने बाकी हैं, हम पहले नाम लिख लेते हैं। प्रेरणा, पीयूष, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 1,50,000। अभी पोइनी है नहीं। उसके बाद है रिजर्व फंड, जो उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंट्री रिजर्व फंड क्रेडिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसे हम डेबिट करेंगे। सो द एंट्री विल बी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज प्रेरणा एंड पीयूष कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विच इज 1:3। That is their profit and loss sharing ratio is equal to their capital ratio. तो रिजर्व फंड 30,000 रुपए जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट। तो 30,000 रुपए को हम 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करें, विल बी 7,500 एंड 22,500। इसके बाद असेट साइड कैश बैंक अकाउंट है। अगर गुडविल होता, हम सब जानते हैं गुडविल अगर असेट साइड हो तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डेबिट साइड राइट ऑफ कर दिया जाता है, बट इट इज नॉट गिवन। ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल नॉट गिवन। कैश बैंक अकाउंट 8250 दिया हुआ है, उसको हम कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिख लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम फर्स्ट पॉइंट से कंसीडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट से अब हम कंसीडर करेंगे। देखें क्या है, पॉइनी ब्रॉट 62,500 एज कैपिटल। तो कैपिटल लेके आई एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पॉइनीस कैपिटल अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखें टू पॉइनीस कैपिटल अकाउंट 62,500 और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दें बाय कैश बैंक अकाउंट। अमाउंट पॉइनी के कॉलम में लिखेंगे। इसको आगे ब्रेकअप करके हम रीड करें। 24,000 वो लेकर आ रही है गुडविल के। अगर न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आए तो एंट्री क्या होती है हमें मालूम होना चाहिए। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अमाउंट शेयर ऑफ गुडविल, तो उसकी हम एंट्री देते हैं। क्या देते हैं एंट्री, मालूम होना चाहिए। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। P4G I use for प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश बैंक अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखें, उसको कितना लेके आई है देख लें। 24,000 शी हैज ब्रॉट इन। कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखें हम टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
अमाउंट लिख दें हम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, हाउ मच इज इट, इट इज 24,000। अब जब न्यू पार्टनर कैपिटल के साथ साथ गुडविल लेके आए, तो जो गुडविल लेके आए हैं वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइस रेशियो हम क्रेडिट करते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड, अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन विच रेशियो, दैट सैक्रिफाइस रेशियो। अब इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड पार्टनर्स का सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इन सच सिचुएशन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स will be their new profit and loss sharing ratio also, and the same will be their sacrifice ratio also, that already discussed earlier. तो जो उनका ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्रेडिट साइन में उनके ओल्ड P&L रेशियो में जो सैक्रिफाइस रेशियो भी है। सो 24,000 इन 1:3, 6,000 and 18,000। अब इससे आगे क्या कहा हुआ, ये जो गुडविल का लेके आई है कितना, 6,000 and 18,000, इसका 60% उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। 60% कितना विड्रॉ किया, 60%। तो 6,000 का 60% 3,600 एंड 18,000 का 60% आई थिंक इट इज 10,800। चेक इट आउट योरसेल्फ ऑन कैलकुलेटर। सो 3,600 एंड 10,800 दे हैव विड्रॉन। और जब पार्टनर अगर विड्रॉ करे तो हम उसकी एंट्री देते हैं, हमें जो मालूम होना चाहिए दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो ये अमाउंट 3,600 एंड 10,800 की एंट्री हम दे देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, लिखें डेबिट साइड टू कैश बैंक अकाउंट 3,600, 10,800, और कैश बैंक में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रेरणास कैपिटल अकाउंट, बाय पीयूष कैपिटल अकाउंट 3,600 एंड 10,800। तो ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी उसकी हमने इफेक्ट दे दी। अब आगे बढ़ते हैं, देखें मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी 20 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। अब स्टॉक आप देखोगे तो 17,500 है, जबकि मार्केट में वैल्यू 20,000 है, मतलब 2,500 बेनिफिट, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे। अगेन मशीनरी बैलेंस शीट में 17,500 है, जो मार्केट वैल्यू है 120, तो यहाँ पे भी 2,500 का बेनिफिट है। दोनों में हमें 2,500 का बेनिफिट दिख रहा है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में दोनों ही वैल्यू हम प्लस करके लिखेंगे। अगर एंट्री बनाते हैं तो क्या बनेगी एंट्री, यहाँ पे दैट स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इफेक्ट दे दें हम उसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम उसको लिखेंगे पहुंच जाए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट क्रेडिट साइड लिखें बाय स्टॉक अकाउंट एंड बाय मशीनरी अकाउंट। अमाउंट दोनों में कितना इंक्रीज हुआ वो वैल्यू लिखनी है। सो 2,500 एंड 2,500 ईच।
एक बार चेक कर लें। यस, मशीनरी में देखो 120 हुआ है, मतलब मशीनरी में 12,500, मशीनरी में 12,500। बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। बैलेंस शीट में हम लिखें असेट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड लिखें नॉन करंट असेट, पहले तो हेडिंग दे देंगे हम। उसमें लिखें पहले मशीनरी, 1,07,000। इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 1,07,500 एडिशन प्लस इंक्रीज कितना इंक्रीज है अमाउंट देख लेंगे हम, कितना इंक्रीज है 12,500। तो मशीनरी बाहर के कॉलम में अब आ जाएगा हमारा 1,20,000। वहीं थोड़ी जगह छोड़ के हम दूसरा हेडिंग लिख देते हैं, करंट एसेट्स। उसमें लिखें हम स्टॉक, इनर कॉलम में लिखेंगे पहले 17,575, सॉरी 17,500 प्लस इंक्रीज्ड 2,500 और बाहर हम अमाउंट लिख देंगे 20,000। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड एडजस्टमेंट इफेक्ट फिनिश हुआ। प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर 2% रखना है, तो दोनों चीजें डेटर्स में से माइनस होगी और रिवैल्यूएशन में डेबिट किया जाएगा। एंट्री अगर हम बनाए उसका तो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीडीआर अकाउंट टू डीआरडी अकाउंट। तो नॉन करंट करंट असेट के अंदर हम पहुंच जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे डेप्टर्स, दे आर गिवन, चेक कर लेते हैं हम, इट इज 30,000 दिखाई पड़ रहा है हमें। डेप्टर्स कितने हैं 30,000, तो डेप्टर्स लिखे इनर कॉलम में 30,000 माइनस बीडीआर, बीडीआर हम रेट मेंशन कर सकते हैं करना चाहें तो, इट इज एट द रेट ऑफ at the rate of 10% will be 3,000 माइनस करके उसको हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि अभी डीआरडी भी हमें माइनस करना है। 27,000 माइनस डीआरडी, इट इज एट द रेट ऑफ 2% ओनली, तो 27,000 का 2% करेंगे हम, इट इज आई थिंक 540। और ये जो अमाउंट आती है इसको हम बाहर लिख देंगे माइनस करके 26,460। और बीडीआर डीआरडी दोनों की सेकंड इफेक्ट हम देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड टू बीडीआर अकाउंट and to DRD account 3,000 and 540। तो थर्ड एडजस्टमेंट की इफेक्ट हमारी यहाँ फिनिश हुई। फोर्थ है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 30,000। अब क्रेडिटर्स आप बैलेंस शीट में देख रहे हो, दे आर गिवन 40,000 एंड दे आर टू बी पेड ओनली 30,000। इट मींस देयर इज बेनिफिट ऑफ ₹10,000। So if there is benefit, revaluation account will get credited. Entry will be creditors account debit to revaluation account। तो creditors जो है revaluation में हम credit side लिखेंगे, creditors by creditors कितना benefit हुआ वो amount लिखेंगे हम by creditors account 10,000 का benefit होने वाला है हमें। बैलेंस शीट में हम लायबिलिटीज साइड पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड, करंट लायबिलिटीज के अंदर
इसमें हम लिखें क्रेडिटर्स they are 40,000, creditors they are 40,000 माइनस नॉट पेएबल या डिक्रीज लिख सकते हैं हम, माइनस नॉट पेएबल और वी मे राइट decreased. How much it is decreased? 10,000. So in outer column creditors will appear in balance sheet now rupees 30,000. So fourth adjustment here comes to the end. फिफ्थ वाले में हम देखें क्या कहा हुआ है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 15% एंड फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%. तो बिल्डिंग और फर्नीचर 15 और 20 15 एंड 20% हमें इंक्रीज करना है. तो बिल्डिंग 90,000 है, फर्नीचर 17,500, दोनों ही बेनिफिट है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा. तो हम पहले तो आ जाए नॉन करंट असेट्स पे, वहां लिखते हैं बिल्डिंग पहले हम नॉन करंट असेट में लिखें बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिखेंगे इट इज 90,000 प्लस इंक्रीज्ड 15% इंक्रीज करना है, दैट विल बी आई थिंक 13,500. चेक इट आउट ऑन कैलकुलेटर. अमाउंट एक साथ में लिख देंगे, साथ में लिखें, आउटर कॉलम में एक साथ में लिखेंगे हम ये अमाउंट. फर्नीचर वो भी देख लें कितना है, फर्नीचर है 17,500 और उसको हमें इंक्रीज करना है 20%. सो फर्नीचर इनर कॉलम 17,500, यहां भी प्लस इंक्रीज्ड 20% इंक्रीज करना है हमें. देखिए 20%, आई थिंक दैट विल बी 3,500. चेक इट आउट. और ये जो अमाउंट्स हैं हम आउटर कॉलम में लिखेंगे. बिल्डिंग हो जाएगा हमारा 1,03,500. और फर्नीचर हमारा हो जाएगा 21,000. दोनों ही बेनिफिट है हमारे लिए, तो उसको हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे. बाय बिल्डिंग अकाउंट एंड बाय फर्नीचर. बिल्डिंग में था हमारा 15% 13,500 और फर्नीचर में था 3,500. तो इसके साथ ही ये एडजस्टमेंट भी हमारा फिनिश हुआ. इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे हम जाएं, देखें क्या है.
आउटस्टैंडिंग वेजेस 460 है जो रिकॉर्ड करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि 1500 तो थे ही और 460 रुपये 460 पे करना बाकी है। सो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, उसकी इफेक्ट दें। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हम पहुंच जाए, वहां लिखते हैं डेबिट साइड सबसे पहले टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। इट इज 460 रुपीज। अमाउंट कंफर्म कर लें एक बार, यस। और बैलेंस शीट के अंदर भी हम उसकी इफेक्ट देंगे। बैलेंस शीट पे पहुंच जाए, बैलेंस शीट करंट लायबिलिटीज में हम लिख दें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी हमारे पास है। देखें बैलेंस शीट में कितना है, 1500 है, 1500। उसमें हम प्लस कर देंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस $460। तो आउटर कॉलम में अभी आ जाएगा 1960। आगे देखें और कोई एडजस्टमेंट अब हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बैलेंस शीट की जो चीज़ें अब हम देख लें कि कैपिटल आ चुका है, रिजर्व फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, असेट साइड भी सारी चीज़ें आ गई। सिर्फ एक्रूड इनकम दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम लिखना बाकी है, तो उसको एज इट इज़ हम करंट असेट में एंटर कर देंगे। कोई चीज़ अब बाकी नहीं रहनी चाहिए, जो भी चीज़ें उसको हम एज इट इज़ रिकॉर्ड कर देंगे। तो करंट असेट्स में जो हमारे डेटर्स हमने लिखे थे उसके नीचे ये अमाउंट हम लिख लेंगे। एक्रूड इनकम, और उसका अमाउंट हम कंफर्म कर लें, इट इज 750। इसके बाद हमने क्या करना है मालूम होना चाहिए कि अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे। चेक कर लेते हैं टोटल दैट वी कैन सी इट इज क्रेडिट साइड टोटल इज मोर। टोटल कर लें हम 15 और 10 25 और 17, आई थिंक इट इज 42,000। $42,000 credit total है। The one which is more will be recorded both the side as usually we are recording। उसमें से हम डेबिट टोटल माइनस करें तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो हम लिखते हैं, मालूम होना चाहिए, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या चीज कहेंगे इसको, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तीनों दो पार्टनर ओल्ड जो है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनका नाम लिख के हम प्रेरणा। प्रॉफिट आ रहा है 38,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:4, 9,000 1:3 9 इन द कैपिटल और P&L रेशियो। यहाँ पे कैपिटल और P&L रेशियो दोनों एक ही है। is a 20 and 28,500 और ये जो अमाउंट है ये हम लिख देंगे आउटर कॉलम में 38,000।
प्रॉफिट डेबिट है तो उनके कैपिटल अकाउंट में हम उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड लिखें बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हम प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट अमाउंट 9,500 एंड 28,500। इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। टोटल करें हम क्रेडिट साइड 17 और 36 73,000 आई थिंक, चेक करते रहिए आप भी साथ में। आई थिंक 2,19,000 सेकेंड में मेरे साथ चिंतन सर हैं हेल्प में और वो टोटलिंग का कामकाज कर रहे हैं, सो थैंक्स गोज टू हिम। यही टोटल हम डेबिट साइड लिख देंगे और माइनस करके बैलेंस फाइंड कर लेंगे कि क्या आता है। तो फर्स्ट पार्टनर का बैलेंस है 69,400। सेकेंड में जब हम माइनस करते हैं वी आर गेटिंग 11 माइनस करते हैं 2,08,200 और थर्ड में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं तो वही 62,500। मैंने एक जीरो गलती से नीचे ज़्यादा लिख दिया है, देख लेंगे उसे। टू बैलेंस कैरी डाउन, यही वाला बैलेंस हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, पर उससे पहले हम अपने कैश अकाउंट को भी क्लोज कर लें। कैश का टोटल करें 8250 प्लस 62,500 प्लस 24,000, सो इट्स टोटल इज 94,750। वही टोटल 94,750 हम जब क्रेडिट साइड लिखते हैं और माइनस करें उसमें से 3,600 एंड 10,800, बैलेंस हमें मिल रहा है 80,350। लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,350। कैश का बैलेंस हम कैश बैंक अकाउंट जो है करंट असेट में लिख देंगे। $80,350। पार्टनर्स के जो बैलेंस थे वो भी हम देख लें 69,400, 2,08,200 एंड 62,500। यही बैलेंसेस हम बैलेंस शीट में लिख देंगे लायबिलिटीज साइड पे तीनों पार्टनर्स के। तीनों पार्टनर्स के नेम जो ऑर्डर में थे उसी ऑर्डर में हम लिखेंगे प्रेरणा, पीयूष एंड कोयनी। प्रेरणा हमने देखा 69,400। पीयूष
2,08,200. And Koini 60. it is 62,500. और टोटल हम करेंगे उसका, इट इज 340,100. फाइनली बैलेंस शीट टोटल करें, उसमें ऐड करते जाए प्लस 30,000 प्लस 1960. Total we are getting 372,060. असेट साइड टोटल वेरीफाई कर लें हम. असेट साइड एक बार टोटल वेरीफाई कर लें. 1,20,000, 1,03,500, 21,000, 20,000, 26,460, 750 and 80,350. So three seven 2,060. तो यहाँ पे हमने 11th क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक का वो कंप्लीट किया. एंड होप दैट यू पीपल गो थ्रू इट एंड एंजॉय दिस लाइव lecture recorded. Goodbye, y'all. Take care yourself and your family. Bye.